Yes, good evening, students. We are discussing the topic force and laws of motion, lecture number 3. Let me discuss what point to be covered in today's topic. It's very simple. Given today's some few numericals on second laws of motion. You know the formulas of second laws of motion. The same way, the Newton's third law also we have to conduct today, and few applications of Newton's third law. Okay. What is Newton's numericals for what? For which formula is required for that? F equals to mass into acceleration, that is m equals to v minus u divided by t. That formula you should know. Again, one formula is there, that is the p2 minus p1 divided by t. Okay. And what is p? P equals to mass into velocity. These are the formulas related to the Newton's second laws of motions. And about the Newton's third laws of motion. Newton's third laws of motion is what? The every reaction there is equal and opposite reaction. That is the force 1 2 is equals to force 2 1, but direction is the opposite, minus direction. Okay. And the third one, few applications are there where we are using the Newton's third law, Newton's first law, and Newton's third law, second, third, first, all the laws where we are using that application you have to discuss. Here, if you are finding from the first picture, the pictures are given. What you are observing from the first, that man is sliding here. The sliders is downside. Here, skating is there, and he is pushing, and he is moving forward. Which law of application is there? Anyone can imagine? Anyone can think? Newton's first law or second law? Okay. Here, actually, when we are discussing about the force, everywhere all the laws are connected. If you are thinking so, first, how it will be the first law? Yes, very good. In every actions, if you are finding, you will find everywhere that all the three laws are applicable. Now, in the first picture, if you are finding, where is the first law? What is the first law? First law is law of inertia. Before was he in race conditions. Now, to move that object, he is applying the external unbalanced force. Correct? He's pushing ground. Here he is by external unbalanced force, and he is moving our forward directions. Got it? That is the first law is applicable here. For accelerate the objects, we require the unbalanced force. The first law is applicable. The second law, how much force is required? The change in momentum is there. Rate of change of momentum. Here before was speed is 0. Means momentum is also 0. Now if increase the speed, some time is required. Then the object will be in a momentum. That is how much force required. We can find out that one. This force equals to mass and acceleration. And here Newton's third law also applicable there. That is the every reaction there is equal and opposite reactions. He is pushing ground in backward direction, and is he moving in a forward directions. Means all the laws are applicable in the picture number 1. Correct? As the same way in picture number 2 here, if you are finding that person is there. Okay. The first one, when it is in rest, then for that moving the objects, he required the force, unbalanced force, and when you are applying the unbalanced force, then he is moving in a forward direction. Correct? Then about the second law, same, it's changing the momentum because he is going to accelerate. Whatever the force is applying, the mass of person and the moment of the object, that is acceleration, is F equals to mass into acceleration. And how about third law? He is pushing that his backward direction, and he is moving in a forward direction. Means here applicable of Newton's third law also. Got it? Very good. Now again, let me go in detail now. Why is then advised to tie a luggage kept on the roof of the bus on the rope? Got it? If suppose vehicle is there, suppose this vehicle is moving in forward direction here, and this is your luggage. Why they are saying you have to tie the that luggage with that rope? Very simple. Why? It is the application. It is a practical. If you are finding, it is the application of Newton's first laws of inertia. That is the inner laws of
motion, inertia of motion. When the object will be in the motion, if you are not tying the rows, if suddenly applying the brake, then what will happen? The luggage is going in a forward direction. Yes or no? Because of that, what they are saying, when we are using the luggage, you have to tie your luggage with the tight rope. Got it? That's given because when the objects will be in a motion, it will be continuously in a motion. Okay. Then if you are applying the brake, then what will happen? Because of the jerk, the object will be going in a forward direction. It is the application of first law, that is laws of inertia. Got it? The next one here, question. Second law of motion gives the measures of which of the following? Yes, exactly. Force. Because force is a vector quantity. Force is a vector quantity. Got it? That is, those quantities require magnitude as well as directions. Here, difference of the force. Difference we are not finding. Okay, definitely it is not a definitions. Okay. Momentum is a product of mass and velocity. Okay. We are not considering about the momentum. And here they are saying just only magnitude. Magnitude is only the number without any directions. That is, which is more suitable there? The first option is more suitable. That is, those require the magnitude as well as directions. The force equals to product of mass and acceleration. The force is a vector quantity. Got it? Vector quantity means they are having the magnitude also as well as direction also. That is, the first option is more suitable in that case. Got it? The next one. Sorry. Which would require a greater force accelerating 2 kilograms of mass at 5 meter per second square or 4 kilogram mass at 2 meter per second square? In which condition force is the maximum you have to find? It's very simple again. So case 1 and case 2. Very good. What is the formula? Force equals to product of mass and here will case 1 and here case 2. Force 1 and force 2 will carry it. Okay. Here also 1 and here also 2 and 2, right? Then what is the force 1? We need to find what is the mass 1 is given? 5, na? Sorry, 2 kilogram. Acceleration is given 5. That is 10 Newton. What is the force F1 is how much? 10 Newton. In next case, the mass is given how much? 4 and 2, that is 8 Newton. And then which is greater here? E of 1 is greater than, that is 10 is greater than 8. That one you have to find only. Which would be the required greater force? Which one is greater force? The first one. Yes. No need. Actually, kilogram is a standard unit. If they given in gram, then we need to convert in a kilogram. Got it? The kilogram is a standard unit, SI unit. There is therefore no need to convert the any physical quantity. Understood? The next one, a force of 5 Newton gives the mass of m1 and acceleration is given 10 meter per second square. We don't know the mass, we have to find the mass. And the mass m2 of acceleration is 20 meter per second. What acceleration would be given in the if both the masses were tied together? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? क्या बोल रहा है? फर्स्ट का मास फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, मास निकालना है. सेकंड का भी वैसे ही मास निकालना है. फिर दोनों को बिना दिया है, सेम फोर्स है, जब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा तो वो निकालना है. ओके, इन फर्स्ट केस द एफ इक्वल्स टू मास इनटू acceleration, correct? What is given force here? 5. How much given mass? m1. Acceleration how much given? 10. That is m1 equals to 0.5 kg. Is it correct? We come to know the force mass m1 now. In case second, and mass of m2 and acceleration of 20 gram, the force is the same again. The force how much? m2 and a2. Got it? The how much force? 5. Mass we don't know. Acceleration how much? 20. That is m2 equals to
5/20, that is how much? 0.25. This is your mass. And what they're saying, if the both are tied together, अभी दोनों को क्या कर दिया है, साथ में मिला दिया है, then what will the mass? That is resultant mass m1 plus m2, that is 0.5 plus 0.25, that is 0. ये हो गया आपका मास हो गया अभी, बराबर है. अभी क्या करना है आपको, फोर्स तो सेम है, तो फोर्स इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन. वो बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है निकालना है आपको, बराबर है. तो फोर्स कितना है आपका 5 इक्वल्स टू 75. We can write 3/4. Can we write for 0.75? And what is the acceleration given? You have to find. Correct? 20/3 is your acceleration. If you are dividing by the 6 point, this acceleration will be 6.667 meter per. Got it? Understood? Isn't it out? बोलिए x. Okay, till here understood? Here also not? Okay. What is the force? Force is given product of mass and how much given the force? 5. Mass given m1 only. What is the given acceleration? 10. Then in first case, F equals to mass into acceleration, then what is m1? 5 divided by 10, how much? 0.5. This first mass, understood now? Why the same with the second mass given, and mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. वो क्या है मास? फोर्स कितना है 5. मास m2 निकालना है, एक्सेलरेशन कितना है 20. then if you are dividing by it, m2 equals to 0.25 kilogram. आप क्या करें, देखो उन्होंने what acceleration is given in both the case, acceleration निकालना है आपको अभी, समझे? कब it gives the both the masses were tied together. दोनों को क्या कर लिया अपने, बंद दिया अभी. पहले के दोनों का पहले एक का मास अलग अलग निकाले, दोनों को क्या कर दिया अभी, बंद दिए. बोले दोनों को क्या कर दिया, मिला दिए. दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा, मास m1 प्लस मास m2. तो मास कितना हो गया आपका 75 हो गया, 0.75 किलोग्राम हो गया. 50 और 25. फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m1 m2 प्लस into a, दैट इज फोर्स 5. 75 का लिख सकते आप 3/4 is 75 only, 0.75 only into a. Then if you are multiplying by 4, 5 4 20 divided by 3. If you are simplifying, then 3 6 are 18, 6.666666 recurring. Then we can write 6.667 meter per second square. Got it now? Clear everyone? Good. The next one, derive the units of force using the second law of motion. अभी क्या करना है आपको, यूनिट निकालना है. क्या करना है, यूनिट निकालना है. किससे, with the help of the first laws of motion. What is the first laws of motion? Okay, sorry, second laws of motion. So F equals to क्या है, mass and what is the unit of mass, kilogram. What is the unit of acceleration, meter per. तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर is the unit of force. A force is of 5 Newton produces an acceleration of 8 meter per second square. है ना? This unit values kilogram meter per second square, that we are showing as by name on the name of the honor scientist. It is 1 kilogram meter per second square, and 1 Newton is the same on the honor of the name of the scientist Newton. है ना? यहाँ पे फिर क्या पूछ रहा है, a force of 5 Newton is produces an acceleration of 8 meter per second square. तो फोर्स कितना दिया आपको, F equals to given 5 Newton and acceleration is how much given, 8 meter per second square on the mass m1. मास कितना है उस पे, निकालो. The F equals to 5 equals to 8 into A, that is A equals to 5 by 8 meter per second square. ये आ गया वैल्यू ऑफ A. Then an acceleration of 24 meter per second square on mass m2. मास m2 पे कितना होगा आपका, m2 यहाँ पे निकालता हूँ मैं, ये m1 था, बोलिए. हाँ m1 निकालना था, तो गलती हो गई मेरी, एक्सेलरेशन दिया है उन्होंने, है ना. तो यहाँ पे लिखते समय मेरी क्या हुई, गड़बड़ हो गई. यहाँ पे क्या चाहिए था, m.
नहीं गलत हुआ पूरा। देखिए तो मास क्या है, m1 है, और ये m1 कितना हो गया, m1 इक्वल टू 5/8। हाँ, यूनिट इज करेक्ट, द यूनिट विल बी द किलोग्राम। वेरी गुड, इसका मतलब आपका ध्यान है, इट्स गुड। बाय द सेम वे टू फाइंड मास m2, same formula again, F equals to m2 into a2. Here the mass m1 over the acceleration, how much given, 24. Force how much given, 5. Then m2 equals to 5/24 kilogram of the mass m2. What is the acceleration of the same force provided the both the mass side? Same question दिया है देखो। फिर क्या करना है आपको, F इक्वल्स टू कितना है, m1 प्लस m2 इंटू ए, है ना, a निकालना है आपको। तो a कैसा आएगा, a इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय a1 प्लस m2। F कितना है, 5 डिवाइडेड बाय एडिशन कितना होगा उसका, m1 कितना है आपका 5/8 प्लस 5/24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, दैट इज 5 डिवाइड बाय 20 multiplied by 24. Okay, then you simplify here, then you will get here 5 multiplied by 12 by 10, that is 0.6, sorry 6 kilogram. Got it? 12 5 are 60, 60 divided by 10, that is 6 kilogram. दोनों का मिलके मास कितना हो गया आपका, एक्सेलरेशन निकालना है ना, दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो गया फिर आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंडरस्टूड नाउ? कौन सा बेटा, ये देखो फोर्स इक्वल्स टू क्या है, दोनों को क्या कर दिया अभी देखो, दे आर इफ द बोथ द मास आर टाइट टुगेदर, दोनों को क्या कर दिया है, मिला दिया है, दोनों मास को क्या कर दिया है, तो मिलाए बाद कितना हो जाएगा मास, पहले 5/8 प्लस 5/24, दोनों की एडिशन है ना, मास m1 प्लस m2, 5/8 प्लस 5/24, इसको मिला दिया दोनों को मैंने, है ना। एक्सेलरेशन क्या आएगा तुम्हारा, फोर्स डिवाइड बाय मास, फोर्स कितना है आपका 5 न्यूटन, एडिशन करे बाद क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या यहाँ पे, नो, इफ यू आर मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 देन इट विल बी डिनोमिनेटर विल बी 24, ऊपर कितना आएगा 5 3 जा 15, 15 प्लस 5 20, 20 है नीचे का 24 क्या आ जाएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाएगा, है ना। 5 मल्टीप्लाइड 24 डिवाइड बाय 20, फिर डिवाइड बाय 10 करो, 2 करो तो कितना आ गया, 2 से करो तो 12 आ गया ये, है ना। ये इसको ये आ जाएगा तुम्हारा 12, 12 5 जा 60, है ना, 60 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट ना? ओके, विल प्रोसीड नाउ। देखिए, हैमर ऑफ मास इज गिवन 500 ग्राम, हथौड़ा है, मारना है आपको, मूविंग एट 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दिया है, strikes on a nail stops the hammer in a very short interval of time 0.01 सेकंड। उतने टाइम पे क्या हो रहा है तुम्हारा, उसको ऐसा मार रहे तुम हथौड़े से, है ना, उतने टाइम में क्या नेल तुम्हारा रुक जा रहा है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, तो कितना फोर्स लग रहा है निकालना है। व्हाट यू अंडरस्टूड क्वेश्चन, सेम अगेन द सेम फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ v माइनस u डिवाइड बाय t, बराबर। तो यहाँ पे क्या है देखो, कैसा हो रहा है फोर्स, मास कितना दिया इस पे 500 ग्राम, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, इट विल बी इन किलोग्राम, दैट इज 0.5 और 1/2 kg, करेक्ट, 0.5 किलोग्राम। वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, बाद में क्या है आपको हैमर मारने के बाद में, मूविंग एट देखो हैमर्स ऑफ मास 500 मूविंग एट स्पीड, ये स्पीड से जा रहा है, बराबर है। वो तो इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी, अरे भाई इनिशियल कितना है 50 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे कितना है इनिशियल 50, बराबर है, फाइनल कितना है, रुक जा रहा है ना 0, और टाइम कितना दिया 0.01। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो, ये 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 50 एंड डिवाइडिंग बाय 0.01, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका
1, क्यों -1 आएगा? क्योंकि क्या है, तुम्हारा फोर्स अप्लाई कर रहे तो तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हारा हैमर लगने के बाद में क्या जाएगा, हैमर पीछे आएगा ना, इसका मतलब क्या है, उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, तुम्हारा अपोजिट हो रहा है, इसलिए क्या है, आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। देखिए 5 5 25 divided by 0.01 Newton. If you multiply by 100 and dividing by 100, it will be, the answer will be 2500 Newton. समझे क्या? हाँ, with negative sign, -2500 Newton. Yes, same, the same formula, mass into acceleration. What is the acceleration? Final velocity, what is initial velocity divided by टाइम. व्हाट इज द फाइनल, क्या है, अब टाइम कितना दिया आपको, ये टाइम दिया है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 50 है. बाद में कहाँ जा रहा है, स्टॉप हो रहा है, इसका मतलब रेस्ट पे जा रहा है. तो ये कितना है, फाइनल वेलोसिटी v कितना है इसका, 0 है. वही अप्लाई किया अपन ने, है ना. समझ में आ गया. देखिए नेक्स्ट वन, a bullet of mass 10 kilogram traveling with the horizontal velocities of 150 meter per second. Bullet है, strikes stationary wooden blocks and comes to the rest in 0.03 seconds. Then that bullet is going to rest and the time is required how much, 0.03 seconds. Calculate the distance of the penetrations of the bullets into the block. तो कितने जोर से तुम्हारे बुलेट ने क्या करा, पेनिट्रेट किया, उसके अंदर घुस गया, लकड़ी के अंदर निकालना है. Also calculate the magnitude of the force, कितना फोर्स लगा है, exerted by the wooden blocks on the bullet. क्वेश्चन समझ में आ गया. तो क्या है, देखो ये तुम्हारा वुडन ब्लॉक है ना. वुडन ब्लॉक क्या है तुम्हारा, वुडन ब्लॉक था. यहाँ से आपकी बुलेट आ रही है, जो बहुत स्पीडली आ रही है आपकी बुलेट, और बुलेट का मास कितना है तुम्हारा, 10 ग्राम, और उसका स्पीड कितना है तुम्हारी, 150 मीटर पर सेकंड ऐसी आ रही है बुलेट आपकी. आया क्या, होगा सकता. तो यहाँ पे आने के बाद में क्या है, इस पे आ तुम्हारी बुलेट क्या है, इसमें घुस जाएंगी इसमें, है ना. बुलेट क्या है, इसको लग जा रही है, यहाँ पे आ रही है, स्ट्राइक कर रही है. स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक्स, पहले स्टेशनरी है. स्टेशनरी इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या है, रेस्ट पे, इसका मोमेंटम 0, कुछ भी मास रहने दो. मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या है उसका, इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, 0. इसका मोमेंटम कितना हो गया, 10 इंटू, पहले कन्वर्ट करेंगे आप इसे, 10 ग्राम दिया, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किलोग्राम में. ओके, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 150, ये हो गया तुम्हारा मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम ये और फाइनल मोमेंटम क्या है, 0. ठीक है, P1 और ये क्या है तुम्हारा, P2 निकाल दिया अपन ने. कम्स टू ब्लॉक्स एट द रेस्ट, और टाइम कितना दिया उसका, टाइम कितना दे रहा है उसे, they can calculate the distance of the penetration. तो डिस्टेंस निकालना है, कितना दूर जा रहा है. हाँ, ओके, विल फाइंड. ओके, तो क्या करना है, डिस्टेंस आपको निकालना है. डिस्टेंस निकालने के पहले क्या करेंगे अपन, एक्सेलरेशन निकालेंगे पहले. ओके, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा तुम्हारा, फोर्स क्या आएगा तुम्हारा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. तो फोर्स यहाँ पे दिया है कि अपने को नहीं दिया है ना. तो मास कितना है तुम्हारा, मास भी दिया है क्या, इसका मास दिया 10, और इसका एक्सेलरेशन दिया है आपका v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t, है ना. या तो p1 फोर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो आप, वेरी इजी. कौन सा, p2 माइनस p1 डिवाइड बाय t, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. p2 क्या है इसमें तुम्हारा, p2 कितना है तुम्हारा, 0. p1 कितना है, देखो 150 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय टाइम कितना है आपका, 0.03. तो ये कितना होगा तुम्हारा, फोर्स कितना आएगा, ये भी माइनस में आएगा. माइनस 5 1 5 5 2 10 5 3 15, माइनस 1.5 माइनस 1.5 डिवाइड बाय 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो इसे. तो कितना होगा तुम्हारा फिर 150, और नीचे कितना होगा तुम्हारा 3, बराबर क्या 15, 15 और अब 2 0 डालते तो पॉइंट कितने डेसिमल के बाद में, एक डेसिमल 150 आ गया, बराबर. तो 3 5 50 ना,
फोर्स कितना आ गया फिर आपका 15, अरे 50 न्यूटन। फोर्स कितना आ गया आपका, फोर्स इक्वल हाउ मच 50 न्यूटन। तो फोर्स आ गया है, तो फोर्स आने के बाद क्या करेंगे अपन, एक्सेलरेशन निकाल देंगे, है ना। तो फोर्स आ गया, तो फोर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो क्या करेंगे, अभी एक्सेलरेशन निकालना है आपको। तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ए इक्वल्स टू फोर्स कितना है आपका 50, मास कितना है बुलेट का 10 ग्राम, 10 ग्राम डिवाइड बाय 1000, देन क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा 5000 मीटर पर, यह आपका एक्सेलरेशन आ गया, बराबर है। एक्सेलरेशन भी आ गया आपके पास और फोर्स भी आ गया। पर आपने को पूछा क्या फोर्स निकालना था, पूछा फोर्स निकाल दिया अपन ने। तो और मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी निकालो बोला, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, तो कितना लगने के बाद में भी कितनी दूर तुम्हारी गाड़ी जाएगी वो निकालना है ना। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आपको, v इक्वल्स टू कितना है u प्लस 80, क्या है v इक्वल्स यू प्लस 80। तो यहाँ पे देखो इनिशियली क्या है तुम्हारा, फाइनली तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी इसकी बुलेट की 150 है, डिस्टेंस निकालना है ना। अच्छा, तो ये फॉर्मूला अपन करेंगे अप्लाई, यस इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ओके, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी गिवन 150, करेक्ट है। और टाइम कितना दिया उसका 0.03 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन का माइनस आया ना, इन माइनस है, देखो फोर्स भी क्या है आपका माइनस है यहाँ पे, बराबर है। तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा आपका -5000। तो बोलिए इंटू 0.03 का स्क्वायर, कैलकुलेट कर दो, आपको आएगा डिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारा, इसमें मल्टीप्लाई करे बाद 150 मल्टीप्लाई बाय 3 45, बराबर है क्या 45 डिवाइड बाय नहीं प्लस है, ये एक लाइन में है, मेरी जगह नहीं थी बोल के मैंने ऐसे लिखा, डिवाइड बाय 2 नहीं है वो, 45 प्लस माइनस 1/2 इंटू 5000 इंटू 0.0009, 0.3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, इसको डिवाइड बाय 2 कर, कितना होगा तुम्हारा ये 2500, देन 45 माइनस 25 9 जा कितना आता है 225, और कितने जीरो है यहाँ पर 2 जीरो है ना, और वहाँ पे कितने जीरो है ना पीछे 4 जीरो बोलते यहाँ पे आएगा। तो फिर 45 में से कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, 45 माइनस 2.25, बराबर है। तो कितना आएगा फिर 42 पॉइंट, देखो एक बार सब्ट्रैक्शन करो, 43 आएगा क्या 42 आएगा, हाँ फिर ये अपना आंसर सही है, समझ में आ गया। कौन सा बेटा, ये फॉर्मूला पता है, यस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, ये क्या है यस निकालना है। तो यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या है जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने क्या करा नीचे लिखा। तो ये क्या यू कितना है 150, टी कितना है तुम्हारा 0.03 प्लस 1/2, ए कितना है तुम्हारा -5000, और टी कितना है 0.03 इंटू का स्क्वायर, करेक्ट है। देन 0.03 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 0.009, मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड बाय 2 कर दिए, है ना, समझ में आ रहा है क्या। सिंप्लीफाई करे बाद क्या जाएगा आपका आंसर, गॉट इट, क्लियर। द नेक्स्ट वन देखिए, हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, उसका जो हॉकी बॉल का मास दिया है कितना है 200 ग्राम, दैट इज 200 मल्टीप्लाइड बाय 1000 किलोग्राम, दैट इज यू कैन राइट 0.2 किलोग्राम में दिया है आपको हॉकी का बॉल का मास। ट्रैवलिंग एट स्पीड, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग एरर है, 10 मीटर पर सेकंड, है ना, यूनिट क्या होना चाहिए मीटर पर
सेकंड, यानी वेलोसिटी दिया है आपकी 10 मीटर पर सेकंड. It strikes by the hockey sticks so as returns as along the original path with the velocity of 5 मीटर पर सेकंड. तो फिर क्या होगा, वही पाथ पे आ गया, ओरिजिनल पाथ पे फिर से रिटर्न आया. रिटर्न का मतलब क्या है, ये जाने वाली वेलोसिटी थी, आते समय ये समझो u था, v क्या हो गया आपका -5, रिटर्न आया सेम पाथ में, रास्ता भी क्या है उसका सेम है. आपके कोई हॉकी खेलते समय ये दोस्त को दे दिया उसने ये स्पीड से, और फिर उसने क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया बॉल, है ना. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम निकालना है आपको. मोमेंटम का चेंज यानी क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द हॉकी बॉल्स बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक्स. वो हॉकी बॉल जो फोर्स से अप्लाई किया, तो वहां पे चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है निकालना है. मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम क्या है p1 निकालेंगे पहले, और क्या करेंगे p2, दोनों का चेंज बाद में निकालेंगे. चेंज का मतलब क्या है, p2 माइनस p1, ये क्या होगा आपका चेंज हो गया. तो इनिशियल मोमेंटम क्या है देखो, तो तुम्हारा बॉल का मास कितना है 200 ग्राम. 200 ग्राम में 200 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, स्पीड क्या है वो बॉल की 10. तो यहाँ पे ये जीरो इसके साथ कैंसिल, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, ये जीरो इसके साथ कैंसिल, तो कितना आ गया तुम्हारा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ये आ गया तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम. अभी फाइनल मोमेंटम क्या है देखो, फाइनल मोमेंटम में क्या है, तुम्हारी वेलोसिटी माइनस है, बॉल का मास कितना है सेम है, बॉल का मास चेंज हुआ क्या नहीं हुआ. तो 200 डिवाइड बाय 1000 इंटू, अभी यहाँ पे देखो उसने वापस फेंका, उसकी वेलोसिटी क्या है तुम्हारी 5, बट माइनस है नहीं, डायरेक्शन क्या होगा रिवर्स होगा ना उसका, बराबर है. तो फिर कितना हो गया तुम्हारा 1 0 2 0 के कैंसिल हो गए. तो 2 1 2 2 5 10 5 1 5, तो कितना हो गया तुम्हारा -1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ये आ गया तुम्हारा फाइनल मोमेंटम. समझ में आ गया. अभी चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल कौन सा है तुम्हारा -1 -2, दैट इज -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. ये हो गया आपका फाइनल मोमेंटम. गॉट इट, -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. तो नेक्स्ट वन देखिए, ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना कितना दिया ट्रक की आपको 0. रोल्स डाउन हिल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रैवल्स द डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. अभी एक्सेलरेशन नीचे उतर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 400 मीटर, और टाइम कितना दिया उसका 20 सेकंड. फाइंड द एक्सेलरेशन, ए निकालना है आपको. ए क्या निकालना है आपको, निकालना है. एंड फाइंड द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन इट, फोर्स भी निकालना है. ऑफ मास कितना दिया उसका 7000 है ना. 1 टन, 1 टन यानी 1000, यानी 7 टन, यानी कितना है मास दिया है 7000. तो आपको सबसे पहले फोर्स निकालने के लिए मास दिया है, एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर तो आपको आ जाएगा एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, आपके पास काइनेमेटिक इक्वेशन से, हाँ यस यूटी वो इक्वेशन से ले लेंगे. तो क्या है तुम्हारा यस इक्वल टू कितना है यूटी प्लस 1/2a टी स्क्वायर. तो डिस्टेंस कितना दिया आपका 400 मीटर, तो लिख देंगे यहाँ पर. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है, प्लस 1/2a पता है क्या आपको, नहीं पता है ना. टाइम दिया है, कितना दिया है 20 इंटू 20 है ना. तो फिर ये 400 कैंसिल, तो ए कितना आ गया आपका 0.2 है ना, सॉरी 2 आएगा ना, कितना गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आ गया आपका एक्सेलरेशन. तो फोर्स निकालना है, फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा मास इंटू फोर्स कितना दिया 7000, एक्शन कितना है 2, यस 7 टन गिवन. कितना है मास 7 टन, 1 टन यानी कितना होता है 1000. ओके, तो फिर फोर्स कुछ मास एक्सेलरेशन आ गया आपका 2, 7000 इंटू 2 दैट इज 14000 न्यूटन. गॉट इट, समझ में आ रहा है ना. और द नेक्स्ट वन, यूज सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, डिराइव द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड एक्सेलरेशन. सिंपल पता है आपको. बुलेट्स ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक्स
the sandbags of the speed of 103 meter per second and gets embedded after traveling the 5 centimeter. Calculate. Same question वैसा ही देखो, सेम क्वेश्चन वी डिस्कस ऑलरेडी, जो वुडन ब्लॉक का था क्या, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है. द रेजिस्टिव फोर्स यानी जो उसको अपोज करने वाला फोर्स क्या है वो निकालना है. वो क्या है तुम्हारा माइनस में आएगा. एंड द सैंड ऑन द ब्लॉक, तुमने मारे गन से फोर्स मारे तो जो लगने वाला उसको अपोज करने वाला रोकने वाला फोर्स कितना है वो निकालना है. ओके. एंड द टाइम टेकन, तो टाइम भी निकालना है, टाइम भी निकालना है और फोर्स भी निकालना है. क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड लॉ ऑफ द फोर्स एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट. तो कितना है तुम्हारा बुलेट का मास है तुम्हारा 10 ग्राम, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो किलोग्राम में होगा. मास कितना होगा ये किलोग्राम. स्पीड कितना दिया, स्टैंड बैक्स एट द स्पीड ऑफ 103 मीटर पर सेकंड. और हमारे पास स्पीड की थी उसकी बराबर है. तो अभी क्या होगा, उसने के बाद में लगने के बाद में वहां पे क्या है रुक गया तुम्हारा सैंड बैग में. एंड गेट्स इम्बेडेड इन द ट्रैवलर्स 5 सेंटीमीटर. तो लगने के बाद में क्या 5 सेंटीमीटर वो बैग को लेके गया आगे, है ना. तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 5 डिवाइडिंग बाय 100 मीटर. 5 सेंटीमीटर ने कितना है इनिशियल क्या जाए ना इसमें 103 से मारा, बाद में क्या रुक गया वो जाने के बाद, वहां पे लगने के बाद में क्या हो जाएगा रुक जाएगा ना. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी फिर, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. इनिशियली ये इनिशियल है. फाइनल वेलोसिटी क्या है तुम्हारा जाने के बाद में रुक जा रहा है बॉल. तो रुकते रुकते क्या कर रहा है डिस्टेंस कवर कर रहा है आपका. कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 5/100 मीटर. फॉर्मूला क्या है आपका v स्क्वायर इक्वल टू कितना u स्क्वायर प्लस 2as बराबर. v कितना है यहाँ पे इसका v पता है कि आपको फाइनल 0 है, रुक जा रहा है बाद में. इनिशियल कितना है आपका 103 का होल स्क्वायर प्लस 2a एंड रिटार्डेशन है यहाँ पे बराबर है. तो और s कितना है आपका 5/100. तो इसको यहाँ पे माइनस है एक्चुअली. रिटार्डेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पीड कम हो रही ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए साइन माइनस आना चाहिए बराबर है, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे क्या है -2. इधर के बाद कितना होगा 103 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू 5/100. तो ये कितना होगा तुम्हारा 50. तो ये कितना होगा तुम्हारा 1/10 है ना. तो 103 का स्क्वायर कितना है तुम्हारा 106 और 09 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू a. तो a कितना आ गया आपका 106,090. ये आ गया तुम्हारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आ गया आपका एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन निकल गया. अब क्या निकालना था अपने को, रेजिस्टिव फोर्स निकालना था. फोर्स के लिए क्या निकालोगे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास कितना है उसका बुलेट का 10 ग्राम है, 10 डिवाइडिंग बाय 1000. एक्सेलरेशन कितना है 106,090. अरे एक जीरो इसके साथ कैंसिल, एक जीरो इसके साथ कैंसिल, और यहाँ पे जीरो तुम्हारे यहाँ पे पॉइंट आ गया. तो फोर्स कितना आ गया तुम्हारा 1060.9. ये आ गया तुम्हारा फोर्स मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया. और क्या निकालना है आपको, टाइम भी निकालना है. टाइम के लिए फिर से और एक फॉर्मूला आपके पास v इक्वल टू कितना u प्लस 80. फाइनली तुम्हारा जाके रुक जा रहा है. इनिशियल टाइम कितना है तुम्हारा 103. एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारा माइनस है ना 106,090. और t कितना है आपका निकालना है, इधर शिफ्ट करो. तो ये -103 डिवाइडिंग बाय 106,090. ये अगर आपका t सेकंड ये निकाल लो, है ना. उस माइनस के को आएगा इधर के बाद माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस विल बी कैंसल. देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 103 है प्लस, इधर आने के बाद में क्या हो जाएगा 103. ये माइनस है, रिटार्डेशन है नहीं. एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब क्या है रिटार्डेशन है. यहाँ पे माइनस है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. तो आपको टाइम मिलेगा आपका जो भी आएगा वो सेकंड में होगा. समझ में आ गया. उसके बाद में नेक्स्ट वन, व्हाट इज द परसेंटेज change in the momentum of the body is when both the mass and velocity is quadruple. तो चेंज निकालना है कितने परसेंट चेंज हो रहा है. ये तो बहुत सिंपल है. कितना चेंज होगा तुम्हारा, देखो पहला मोमेंटम कितना है इनिशियल मोमेंटम I इक्वल कितना है मास इनटू वेलोसिटी. पहला
तो क्वाड्रपल हो रहा है। दूसरा मोमेंटम कितना है तुम्हारा 4m इंटू 4p, दैट इज 16 mv। तो p2 कितना आ गया 16 इंटू p1, mv यानी कितना है तुम्हारा p1। तो चेंज कितना आ गया, चेंज निकालना है अपने को, चेंज कितना है p2 माइनस 16 p1 माइनस p1 दैट इज 15 p1। नाउ परसेंटेज में निकालना है, तो इसका मतलब p1 100 होगा, तो चेंज कितना होगा 15 इंटू 100 दैट इज परसेंटेज इक्वल्स टू 15 इंटू ये आपका चेंज। ओके दैट इज 15, ये आपका आ गया चेंज। परसेंटेज निकालना पूछा ना अपने को, हाँ पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा क्या, हाँ पूछा। ये क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज कितना आएगा आपका 1500%। द नेक्स्ट वन देखो, ये क्या है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब एक्शन जब हो रही है, जब देखो जी सर ये तुम्हारा जो एरोप्लेन जो ऊपर जा रहा है, तो एट द सेम टाइम्स क्या है तुम्हारा जो एयर प्रेशर क्या है तुम्हारा नीचे फेंक रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा एक फोर्स जा रहा है तुम्हारा F12 और एट द सेम टाइम क्या है F21, दोनों का डायरेक्शन क्या है तुम्हारा अपोजिट है ना। यही फर्स्ट न्यूटन्स लॉ है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है ना। ये तुम्हारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अभी उसके बारे में कुछ यहाँ पे दिया है, देखो एग्जांपल्स देखो। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एक्शन द एक्सेलरेशन ऑफ द फोर्स ऑफ द बुलेट, बुलेट से मारा तो रिएक्शन क्या है तुम्हारा, गन पीछे आ गई, रिकॉल हो गई है ना। वो क्या है तुम्हारा रिएक्शन, रिकॉल द फोर्स ऑफ द गन, गन पीछे आएगी, बुलेट आगे जाने के लिए तुम्हारा गन को पीछे आना पड़ रहा है। अब इसने क्या करा, द एक्शन द फर्स्ट एक्सर्ट द फोर्स ऑन द जॉय, मारा उसके इस पे गाल पे, उस पे हेलमेट पे, तो उसको भी मार लग सकता है ना। तो रिएक्शन जॉय एक्सर्ट द फोर्स ऑन द फर्स्ट है ना, पीछे ने मुट्ठी पे, उस पे भी उसका जो जबड़ेगा उस पे भी लगेगा ना, उसको हाथ लगेगा ना। उन्हें मारा बुक्की समझो दीवार पे, तो दीवार के भी मार लगेगा ना उसके हाथ को। सेम वे यहाँ पे बॉय फिट्स एक्सर्ट फोर्स ऑन द बोट, तो बोट से क्या अगर ऊपर जा रहा है तो बोट पीछे जाएगी। बोट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द फीट, तो बोट भी क्या करेंगी उसके पैरों पे फोर्स डालेगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हियर हाउ इट इज डिपेंड्स नाउ, द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कैसे होते देखिए, द ऑकर साइमल्टेनियसली, साथ में ही आते हैं। अपोजिट डायरेक्शन, एक का डायरेक्शन इधर होता है तो दूसरे का डायरेक्शन क्या होता है तुम्हारा अपोजिट साइड्स। एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन में होते हैं बट दे नॉट ऑन द सेम बॉडी, दे आर ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे यहाँ पर, और ये क्या है तुम्हारे सेम लाइन है बट उसका डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, बट डिफरेंट बॉडीज। अभी जब देखो यहाँ पे करते समय उसका फोर्स पैर को लगा, बोट आगे की, एक हाथ का था दूसरा जॉ का था। एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल, उसमें क्या है ऑब्जेक्ट कितने थे तुम्हारे, तो फोर्स हमेशा कितने ऑब्जेक्ट में एक्सर्ट होता है, इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स है ना। तो क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड द सेम नेचर, दैट इज F12 इक्वल्स टू -2F1 बट अपोजिट डायरेक्शंस। ये तुम्हारा क्या है न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, F12 इक्वल्स टू F21। अभी कोई बुक में क्या दिया है, FAB भी दिया है, FBA, डायरेक्शन क्या होगा सिर्फ माइनस। एक का मतलब क्या है, AB का मतलब क्या है तुम यहाँ से यहाँ जा रहे, A से लेके B, और B का मतलब क्या है B से तुम यहाँ से यहाँ जा रहे है ना, सिर्फ डायरेक्शन इज द डिफर। Now summary, what we discussed today, we discussed today about that few formulas of Newton's second law, that is F equals to mass into acceleration, and Newton's third law, that is every action there is equal and opposite reaction. That formula we discussed. Okay, the homework questions are given downside. Can you solve this one, or let me read fast. A goalkeeper is a game of the football, pulls his hands backwards after the holding the balls shot at the goals and the at the goalkeepers too. तो क्या हो जाएगा, बॉल हाथ पीछे की फोर्स एक्सर्ट करने के लिए है ना, exert large force on the ball, correct, reduce the force exerted by the balls on hand. तो क्या करा, गोलकीपर्स इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड, तो बॉल क्या करा, गोलकीपर बॉल पकड़ते में क्या करता है, हाथ पीछे लेता है ना। तो क्यों लेता है, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम उसका कम करने के लिए करता है ना। अदरवाइज टू रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, हाथ पे बॉल का फोर्स कम लगने के लिए करता है, बी है आंसर है ना। तो हाथ पे क्या करता है, फोर्स कम लगने के लिए वो क्या करता है, उसका वो बॉल को पीछे लेता है। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोमेंटम, मोमेंटम क्या है तुम्हारा, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
राइट SI यूनिट क्या होगा मोमेंटम का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इंटरप्रेट द फोर्स इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम, फोर्स निकालना है। फोर्स क्या है तुम्हारा, नहीं मोमेंटम के टर्म में बता रहा हूं उसने। फोर्स क्या करना है आपको, फोर्स इक्वल्स टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T। मोमेंटम वेराइज द वेलोसिटीज एंड व्हेन द मास इज फिक्स, दैट इज स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोमेंटम क्या है तुम्हारा, मास, एंड व्हेन द मास इज कांस्टेंट देन P वेराइज विद द P। Momentum varies with the mass when the velocity is constant. When velocity is constant, then P varies with the mass. Okay? तो वो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ग्राफ जो निकालते हैं आप, तो ग्राफ क्या आएगा तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इसमें दोनों भी ग्राफ क्या आएगा तुम्हारे, PV and PM in both the case, first case and this will be the second case. Okay? The next one. How much momentum will dumbbells of mass of 10 kilogram, dumbbells का momentum निकालना है आपको, transfers into the floors if the falls on the height of 80 centimeter, ऊपर से dumbbells गिर रही है आपकी, it takes downward acceleration to be the 10 meter per second square। देखो तो क्या बोल रहा है, how much momentum the dumbbells of the mass 10 kilogram transfers of the floors it will falls, पहले ऊपर थी dumbbells, पहले कुछ घूम रही थी क्या, नहीं, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या था आपका, इनिशियल मोमेंटम क्या था, मास उसका था 10 बट वेलोसिटी क्या थी उसकी 0, इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। तो क्या है, नीचे आ रही है अभी मोमेंटम आपका, बॉल क्या हो रही है, डंबल्स तुम्हारी नीचे आ रही है। ट्रांसफर टू फ्लावर्स इज फॉल्स डाउन द हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, ऊपर से आ रही है, हाइट कितनी उसकी 80 सेंटीमीटर है। ओके, एंड टेक्स डाउन एक्सेलरेशन टू बी 10, तो क्या है उसका एक्सेलरेशन कितना है उसका 10 है, तो मोमेंटम कितना आ गया उसका 100, फाइनल मोमेंटम क्या आ गया 100। तो अब क्या करना था आपको, टेक द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकाल के ना, हाँ सॉरी एक्सेलरेशन निकालना था, मोमेंटम नहीं निकालना था, सॉरी अपन ने क्या निकाला, अपन ने तो सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना था आपको, है ना, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या निकालना था आपको, ए निकालना था, है ना। तो देखिए, तो इनिशियल वेलोसिटी इतना नहीं करना नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी 10, है ना। तो फाइनल एक्सेलरेशन कितना दिया 10, डिस्टेंस कितना दिया 10, 80, यस कितना है आपका 80 डिवाइड बाय 100 मीटर, और ए कितना दिया आपको 10, है ना। तो यहां से क्या करेंगे अपन, टाइम निकाल सकते हैं, टाइम निकालना है आपको, एक्सेलरेशन दिया है आपको 10 मीटर पर सेकंड, टेक डाउन आपको क्या निकालना है, हाउ मच टाइम निकालना है, हाउ मच मोमेंटम विल बी डंबल्स ऑफ द मास 10 ट्रांसफर द फ्लोर्स, मोमेंटम तो निकल गया है, मोमेंटम तो निकल गया है यहाँ पर, हाउ मच मोमेंटम ही पूछ रहा है, करेक्ट, मोमेंटम कितना है आपका 100। तो नेक्स्ट वन देखिए हो जाएगा, देखो a constant force acts on the objects of mass 5 kilograms from a duration of 2 seconds। Okay, it is the increasing the objects of velocity from 3 to 7। तो फोर्स आपको निकालना है, फोर्स निकालना है, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन 7 माइनस 3 डिवाइड बाय 2, दैट इज 5, और कितना है तुम्हारा 4 है ना, दैट इज 10 न्यूटन, करेक्ट है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नाउ द फोर्स वाज अप्लाइड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड। अभी फोर्स क्या करे 5 सेकंड के लगा रहे हैं, तो कैसे क्या, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स निकाल रहे हैं आपके F इक्वल्स टू, तो मास कितना है उसका 5, और फोर्स भी कितना लगा रहे हैं 7 माइनस 3, और टाइम कितना लग रहा है आपका 5 लग रहा है, तो कितना होगा तुम्हारा फोर्स कितना होगा फिर वो कंडीशन में, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ओके, इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन फॉर 5 सेकंड, फोर्स क्या 5 सेकंड के लिए लग रहा है। ओके, तो फोर्स कितना लग रहा है आपका 5 सेकंड के लिए लग रहा है, मास एंड एक्सेलरेशन, है ना। तो फोर्स कितना है आपका 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, मास कितना है उसका, मास और एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारा फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम कितना है 5, तो ये क्या है तुम्हारा मास और ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, फाइनल मोमेंटम। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गया ऑब्जेक्ट की आपको निकालना है। तो मास कितना था 5 था, तो 10, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी टाइम नहीं v था ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द 10 यहाँ पे जाए, इनिशियल फ्रॉम 7 to 10, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स।
फिर से मुझे जाना फिर वहाँ पे जस्ट मिनट। तो फाइनल ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, फोर्स कांस्टेंट सेकंड कंडीशन में फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। मैग्नीट्यूड कितना आ गया 10 न्यूटन आ गया आपका। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, हाँ जो फोर्स कितना है, जो 5 सेकंड टाइम दिया है जब का फोर्स निकालना है। अभी ये फोर्स निकालना है आपको, ये आपके लिए अननोन है। ये क्या है, ये 5 अभी कितना है तुम्हारे 7, फाइनल 7 माइनस 3 तो कितना आ गया सब्ट्रैक्शन 4 न्यूटन। फोर्स कितना आएगा, फोर्स निकालना, ये टाइम का फोर्स निकालना है, अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द टाइम, ये टाइम है तो फोर्स कितना आएगा। एंड व्हाट विल द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है। फोर्स कितना है तुम्हारा, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 4 इक्वल्स टू टाइम तो दिया है इसमें, तो यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, सीधा आ गया फाइनल। ऑलरेडी थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है। देखो नेक्स्ट वन, देखो तो या नहीं सेम बराबर फॉर्मूला। देखिए for the distance time tables of that motion, what will be the conclusions of your draw the about that acceleration, it is constant increasing the or decreasing। तो क्या है स्पीड क्या है कि तुम्हारी इंक्रीज होगी और जीरो। व्हाट विल बी द अबाउट द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, फोर्स भी क्या होगा तुम्हारा इंक्रीज होगा। डिस्टेंस क्या है 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 क्यूब आ गया 8 आ गया है ना। टाइम के लिए क्या है तुम्हारा ग्राफ कैसा आ गया तुम्हारा, 1 के लिए 1, 2 के लिए कितना आ गया 8, 3 के लिए 64 है ना। तो ग्राफ ऐसा जा रहा है आपका है ना, क्यूब जा रहे हैं ना। 3 का क्यूब कितना है, 4 का क्यूब कितना है 5 का क्यूब, क्यूब का ग्राफ है तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो जब ग्राफ बढ़ रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम यानी तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है इसका मतलब तुम्हारा फोर्स भी बढ़ रहा है, दैट इज ऑल आर द इंक्रीजिंग। देखिए और भी दिया है क्या, मोटर ऑफ मास 1200 किलोग्राम इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइंस with a uniform velocity of 90 km per second per hour. Its velocity slows down in 80 km per hour in 4 seconds. तो यहाँ पे मास कितना दिया आपको किलोग्राम एंड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 80, 90 इंटू 5/18 करेंगे अपन, बराबर है। और भी कितना है 18 इंटू 5 किलो, इसमें दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया है, then we need to convert in a meter per second, and what is the time is given how much 4 second। टाइम कितना दिया है आपको 4 second। by the unbalanced exerted force calculate the acceleration and change in the momentum, also calculate the magnitude of the force of required। तो क्या करना है आपको फोर्स निकालना है। तो क्या दिया आपको मास दिया है, सीधा सीधा फॉर्मूले में डाल दो, F इक्वल्स टू मास इंटू V माइनस यू डिवाइड बाय, सिंपल निकाल दो। तो मास कितना है आपका 1200, V कितना है आपका 90 माइनस 18 इंटू 5/18 और टाइम कितना दिया आपका 4, सिंप्लीफाई कर दो आ जाएगा आंसर है ना। द नेक्स्ट वन, मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटीज ऑफ 108 मीटर पर किलोमीटर आवर एंड टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप। स्टॉप हो रहा है ना, क्या फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0। इनिशियल क्या है दिया आपका, इनिशियल दिया आपका 108 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकंड है ना। 5/18 इसमें क्या करो मीटर पर सेकंड के लिए कर रहा है ना। तो फिर अब इसको क्या करेंगे डिवाइडिंग बाय 9, तो 9 1 9, 9 2 18, 9 1 9, 9 2 18 अगेन 2 दैट इज 6, 6 5 30 मीटर पर, ये आ गया यू आ गया। V कितना है आपका, वेरी गुड, V 0। टाइम कितना दिया 4 सेकंड। तो मास दिया क्या कुछ, हाँ मास दिया 100,000। तो फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो यस हो सकता है। मास कितना है 1000, फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी 30, 0 माइनस टाइम कितना है 4, बराबर है। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 20, 250 इंटू 25 3
ये आएगा तुम्हारा फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? द नेक्स्ट वन, a motor car is moving with the, sorry, वही था क्या? An object of mass 5 kg is sliding with a constant velocity of 12 meter per second on the frictionless horizontal table. The force required to keep the objects moving with the same velocity is, तो force क्या आएगा? वेरी सिंपल, ओरल आंसर है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या इसमें? फिर क्या आंसर बोलिए? हाँ, क्या बोला है उसने? देखिए, सेम वेलोसिटी। सेम वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन कितना है उसका? वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अरे जीरो होगा ना। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u बाय t, दैट इज इफ v इक्वल्स टू u, दैट इज a इक्वल्स टू हाउ मच? देन फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू, देन फोर्स आल्सो इक्वल्स टू, तो आंसर कौन सा बराबर है? The next one, in the following examples, try to identify the numbers of times of the velocity of the ball changes. कितने बार velocity change हो रही है? Velocity changes, it will depends upon magnitude as well as direction. A football player kicked a footballs to another player. एक क्या कर रहा है? एक मारा दूसरे के पास। करेंगे अपन डायग्रामेटिकली, बहुत इजी हो जाएगा, है ना? ये क्या कर रहा है? फुटबॉल मार रहा है उसके तरफ, दूसरे की तरफ मार रहा है। Another players and his team who's kick the football towards the goal. तो इसने क्या कर रहा है? फुटबॉल कहाँ मारा है? तुम्हारे गोल के तरफ। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे गोल है। Kick the goal toward the goal, and goalkeepers of the opposite teams is collected the football and kicks the towards the player. तो फिर इसने क्या, गोलकीपर ने क्या मारा यहाँ पे? फिर से फुटबॉल मारा है, कोई दूसरे प्लेयर के पास मार दिया, है ना? Of his own teams, and also identify the agent supplies the force in each case. तो क्या करना है आपको? हर केस में कितना फोर्स लग रहा है आपको अप्लाई करना है। तो फोर्स क्या लगेगा तुम्हारे? यहाँ से आते कर इसका मोमेंटम रेट ऑफ टाइम कितना लगेगा वो? ये कंडीशन में क्या है? F1, ये कंडीशन में क्या है? F2, और ये कंडीशन में क्या है? F3। वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई तुम्हारी? यहाँ से यहाँ तक एक बार, दो बार और तीन बार। वेलोसिटी चेंजेस बाय 3 टाइम्स। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज यूनिट ऑफ इंपल्स? क्या है यूनिट ऑफ इंपल्स? इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, दैट इज न्यूटन इनटू सेकंड, दैट इज द न्यूटन सेकंड। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंपल्स एंड मोमेंटम? इंपल्स क्या है तुम्हारा? F इंटू टी, और मोमेंटम क्या होता है तुम्हारा? P मोमेंटम। तो क्या है? द इंपल्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट नहीं आना चाहिए था। मोमेंटम, इंपल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? इंपल्स क्या है तुम्हारा? देखो, F इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा? P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय, इसे क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम इज नोन एज रेट, है ना? तो क्या है तुम्हारा? इंपल्स क्या है? F इंटू टी इक्वल्स टू कितना है? P2 माइनस P1। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होगा तुम्हारा? इंपल्स। तो यहाँ पे रेट नहीं देना चाहिए था मेरे ख्याल से, तो आंसर ये सही है, रेट नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, है ना? द इम्पल्स, व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम, दैट इज F F इंटू टी इक्वल्स टू P2 माइनस P1। इम्पल्स इज इक्वल टू द फोर्स, नहीं है। फोर्स है क्या? नहीं है, दिस इज रॉन्ग। मोमेंटम इज द टाइम डिराइव्ड इम्पल्स, ये भी नहीं है। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, दिस इज आल्सो नॉट। दैट इज फर्स्ट में सभी का थोड़ा सा आंसर गड़बड़ है। यहाँ पे भी रेट नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर तुम्हारा सुटेबल हो सकता था। कब? वहां पे रेट नहीं होता था, तो नहीं तो ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। समझ में आ गया? By this way, we end up the today's sessions. If anyone having the doubt in today's sessions, please ask and clear your doubts. कोई डाउट है क्या? Anyone having doubt in today's session? No doubts? Then shall we wind up today's session? Okay, thank you.